ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। So presently we are conducting the Swadhyaya of Sri Swarup Sambodhan Granth, and as this year is coming to an end in few days time, so will our Granth be too. It is a 25 shlok Granth, and today we are on to 21, right? So remaining 4 or 5 shlokas are left, and we would be at some point down the line we would be concluding this Swadhyaya as well of this Grantha. So if you recall, last week we did not have the lecture. Before that, we had talked about shlok number 19 and shlok number 20, the two shlokas that we had covered, right? And in that, the description was regarding the specific sets of activities, specifically the tapas, the kind of tapa, austerity, that the munis, that the sadhakas need to undertake in order to achieve the liberalization, which is the attainment of their pure self, the Atma Tattva. And in that entire chain of discussion, we had understood that in verse 19, Acharya had said that in order to achieve moksha, sadhaka, the person has to Hey and Upadeya, two terms were used. One that is acceptance, worthy of acceptance, which is called Upadeya, and one that is worthy of giving up, that is called Hey, right? तो मोक्ष मार्ग में जो है उनको हे और उपादेय तत्वों को ज्ञान करके हे को त्याग करना और उपादेय का स्वीकार करना, इसकी बात 19 श्लोक नंबर में की हुई थी। और श्लोक नंबर 20 क्रमांक के ऊपर फिर मोक्ष का ही उपाय आगे बताते हैं। क्या है वो? तो कहते हैं परम उपेक्षा भाव की प्राप्ति होना, अर्थात परम समता रूपी परिणाम होना, अर्थात परम शुद्धोपयोग रूप चारित्र को धारण करना। इसी को शुद्धोपयोग चारित्र कहा हुआ है। तो उस चीज़ को धारण करना और उसके करने से यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बनता है, ऐसा यहाँ आचार्य देव पूर्व में कथन करके आए हुए थे श्लोक नंबर 20 के अंदर, है ना। तो देखिए उसी श्रृंखला को अपन अभी आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग द सेम डिस्कशन हियर बिकॉज द रिमेनिंग 4 or 5 श्लोकास आर जस्ट ऑन दिस टॉपिक एज आई सेड बिफोर. So now let us move on to verse number 21, and I think last time some people had some questions about shlok, right? 23, I think. Sorry? No, that's 21. We are at slope 23, I think. No, 21. 21. We had finished 19 and 20 and we are on to 21 now. Yeah. So if there are any questions, in case somebody had written them down or remember from the last discussion we had, we can talk about it later. Make sure if you want to ask those questions, you may do so in the end. So देखिए अभी यहाँ
श्लोक नंबर 21 का अपन स्वाध्याय करते हैं। देखिए 21 और 22 वैसे एक साथ ही जाते हैं, है ना। तो देखिए 21 के भीतर क्या है, यहाँ आचार्य देव कहते हैं, आई एम गोइंग टू एक्चुअली पुट दिस इन दी स्क्रीन शेयर मोड, लेट मी डू दैट। Because of the crumb, हाँ जी, we took the slope 22. You know, because of yes, the but the way yes, the way it is been correct. Some have correct. You are right. Some have been in couple of the ones that we are following. I think the ordering is little bit different. But we are following the one that we are going through. So I'll tell you now here which ones we will do, which we will consider as 21 and 22. Yes, right. है ना? Yeah, that's a good point. तो देखिए लास्ट टाइम अपन ने जो 2 श्लोक लिए थे ना, वो यहाँ पे 22 और 23 को आए गए हैं। नहीं सॉरी, 19 नंबर का जो श्लोक आया है वो वही आया है, सेम आया है, करेक्ट। और 20 नंबर का श्लोक है ना, उसका क्रम थोड़ा अलग हो गया था, है ना। तो वो 20 नंबर का श्लोक का क्रम यहाँ 22 आया हुआ है। इट वॉज 22 but actually it is 20. There is a little bit of reordering issue. So considering this as 20, now we will go to 21, right? 21, which is see this 20 that you appear here, actually that is 21 if you consider that other one here, right? This becomes 21 now. And actually you know what, yeah. ओके, सो दिस इज द श्लोक वी विल डू, है ना। ये 21 नंबर का समझिए, इसको 20 दिख रहा है, रीऑर्डरिंग का प्रॉब्लम है वो, लेकिन ये 21 नंबर का श्लोक है। तो देखिए यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं अभी इसी संबंध में, मोक्ष की प्राप्ति के संबंध में, स्व आत्म उपलब्धि के संबंध में। तथाप्यति तृष्णावान हन्तः मा भूत्स्वात्मनि, यावत् तृष्णा प्रभुतिस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि। तदाप्यति तृष्णावान् हन्त मा भूत्स्वात्मनि, यावत् तृष्णा प्रभुतिस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि। अब यहाँ प्रश्न जो है वह प्रश्न है, निज शुद्धात्म की भावना को प्राप्त करने के लिए साधक को और क्या क्या करना चाहिए। जैसे पूर्व में आपने बताया, हे उपादेय का ज्ञान रखो, हे को त्यागो और उपादेय को स्वीकार करो, परम समता रूपी भाव में स्थित हो जाओ। इसके आगे और कुछ करना है क्या? तो देखो ये बहुत बड़ी बात अब यहाँ कर रहे हैं इसी की श्रृंखला के भीतर। तो आचार्य देव कहते हैं, हन्तः, हे आत्मन, यानी मोक्ष का इच्छुक, जिसे मुमुक्षु कहा जाता है अध्यात्म के भीतर, उस मुमुक्षु को कह रहे हैं, हे आत्मन, हे जीव, क्या कि यद्यपि, क्या कि ऐसा आत्मचिंतन होने पर भी, कुछ जाति का आत्मचिंतन कि जो पहले अपन ने आत्मचिंतन जो किया हुआ था, पूर्व में आचार्य देव ने सब बताया हुआ था। हे आत्मन, तथापि ऐसा आत्मचिंतन तुमने करने पर भी, कैसा? जो पूर्व में अभी तक जो कह के आए हुए हैं, है ना, सभी चीजों का। इसके साथ क्या कह रहे हैं? तुम तथाप्यति तृष्णावान, इसके साथ में तुम अपने विषय में जब तक तुम तृष्णा से युक्त होगे, तथाप्यति अति तृष्णावान भूत्स्वमात्मनि, अपने आत्मा के विषय में भी तुम अपनी अत्यंत तृष्णा से युक्त होगे, या फिर जब होगे, या फिर कह रहे हैं होना नहीं है, उससे मुक्त होना है।
अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो अपने विषय में भी अति तृष्णा से मुक्त हो जाओ। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं कि यावत, कि भाई जब तक हमारे अंत में यावत तृष्णा प्रभुति उत्पत्ति, जब तक अपने अंतरंग के भीतर तृष्णा की उत्पत्ति की भावना होती रहेगी, तृष्णा की उत्पत्ति जब तक होती रहेगी, तावन मोक्षम न यास्यसि, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं आचार्य देव? तृष्णा की बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, वांछाओं की बात कर रहे हैं, अपने इच्छाओं की बात कर रहे हैं। इसी को यहां तृष्णा शब्द से पुकारा हुआ है। तो देखो तृष्णा क्या है, यहां पे क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको सबको लिया नहीं है क्या? यहां तृष्णा के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं कि तुमको अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है तो अपने विषय में, जिस विषय के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया है और मोक्ष मार्ग में स्थित हो, उसके विषय में भी तुम अति तृष्णावान मत हो। उसमें भी तुम अगर तृष्णावान होते हो तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति का प्रसंग नहीं बनता। तो बहुत ही बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। 21 और 22 ये दोनों जो श्लोक हैं, देखो वो साथ में चलेंगे वैसे, क्योंकि आगे के जो श्लोक है उस श्लोक के भीतर इसी तत्व को जो अपने को अभी बताया जा रहा है वह मोक्ष की प्राप्ति में भी घटाएंगे, अर्थात मोक्ष में ही घटाएंगे, है ना। तो पहले अपन इसको समझ के लेते हैं कि तृष्णा जो है वो तृष्णा जीव की बहुत बड़ी शत्रु है, ऐसा अपने को समझना है। दुनिया में ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसमें तृष्णा नहीं हो। आप बताइए, अपनी अंतरंग की परीक्षा कीजिए। हमारे अपने अंतरंग की अपन खुद परीक्षा करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाई दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको तृष्णा नहीं है, जिसको इच्छा नहीं है, जिसको वांछा नहीं है, जिसको किसी चीज की चाह नहीं है। तो ये तृष्णा है क्या चीज? तृष्णा कहां से आती है? तो अपनी जो लोभ कषाय है, 4 कषाय है ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये जो लोभ कषाय है, ये लोभ कषाय का जो तृष्णा का जो बीज है, वह तृष्णा का बीज लोभ कषाय के अंदर छुपा हुआ है। और यह तृष्णा जो है ये जीव को अनेक प्रकार के दुखों को करने में प्रेरित करती है, अनेक कष्टों को उठाने में प्रेरित करती है। इसके पीछे परिग्रह का भी भाव है, क्योंकि परिग्रह के भाव बिना लोभ काम नहीं करता। अगर आपको परिग्रह की भावना नहीं रही तो लोभ क्यों करोगे आप? तो लोभ के अंदर परिग्रह भी आ गया। परिग्रह को 5 पापों में रखा हुआ है, लेकिन कषाय की जब बात आती है तो कषाय में परिग्रह नहीं है, कषाय में लोभ को रखा हुआ है ना। मुख्य जो 4 कषाय हैं उन कषायों में लोभ को रखा हुआ है। तो ये जो लोभ है, ये लोभ जो है, यही ये तृष्णा जो है, ये लोभ का बीज है। अब देखिए, अपन दशलक्षण पर्व मनाते हैं। दशलक्षण पर्व के चौथा दिन का जो पर्व है, चौथा दिन का जो धर्म है वो कौन सा है? कौन सा धर्म है? शौच धर्म ना, उत्तम शौच धर्म। बहुत बढ़िया। तो देखो उत्तम शौच धर्म क्या है? उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति जीव को कब होती है? तो आगम में कहा लोभात निवृत्ति ही शौचम,
शौच क्या है? तो जीव के अंदर लोभ कषाय भाव की निवृत्ति होना ही उत्तम शौच है। तो यहां आचार्य देव कह रहे हैं उत्तम शुचिता का होना, उत्तम शौच धर्म रूप रहना, अगर हम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, तृष्णा के अंदर जब तक अपनी तृष्णा पलेगी, तो आचार्य देव यहां कह रहे हैं हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अब श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर के भीतर भी यही कहा हुआ है कि ये जो लोभ है, ये लोभ सभी जीव को सताता है। ऐसा कोई शायद कोई विरला जीव है जो लोभ से बच पाता है। तो किस किस के प्रकार का लोभ है? तो लोभ बहुत प्रकार के हैं। किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को पैसे का लोभ है, किसी को प्रेम का लोभ है, किसी को प्रेस्टीज का लोभ है, किसी को सुंदर नारियों का लोभ है, किसी को, मतलब जितने भी अपने विषय कषाय हैं, उन सब विषय कषायों को जब अपन लेते हैं तो उन कषायों से उनको प्राप्त होने की जो इच्छा होती है वो यही लोभ है। तो ये जो लोभ भाव है यह तृष्णा भाव है, और जब तक जीवन के अंदर तृष्णा रहेगी तब तक प्रचुर मात्रा में कर्मबंध चलता ही रहेगा। आप सोचना इस बात को कि ये लोभ कषाय ऐसी कषाय है जैसा परिग्रह का परिणाम चलता है, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते हैं। देखो 4 कषाय है ना, तो 4 कषायों में देखो आप, क्रोध आ जाता है, क्रोध आके निकल जाता है। हम 24 घंटे क्रोधी रह सकते हैं क्या? आर वी मैड? आर वी एंग्री 24/7? यूजुअली नॉट, राइट? तो ये क्रोध भाव जो है वह क्रोध भाव तात्कालिक भाव है। 24 घंटे कोई क्रोध भाव में रहता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चोर जब चोरी करने जाता है 24 घंटे चोरी नहीं करता हो, उसके भाव ऐसे नहीं चलते हैं। मान कषाय भी जब आती है 24 घंटे मान कषाय में कई लोग रह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कठिन है 24 घंटे मान कषाय में रहना। लेकिन लोभ कषाय और परिग्रह ऐसी चीज है भैया, इसमें व्यक्ति 24 घंटे लोभ और परिग्रह में डूबा रहता है। आप सोचना इस चीज को, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, आज कितना मिलाना है, अपना टारगेट क्या है, कैसे इसको करना है, कैसे इसको नहीं करना है, कौन कौन सी योजनाओं को बनाना है, किन किन को मिलना है, कैसे कैसे चीज़ों को आगे प्लानिंग करनी है, कैसा सफल करना। इसके पीछे जो सारी अपन इतनी प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, योजना बनाते हैं, इसके पीछे जो काम करने वाला कषाय भाव कौन सा है? दुनिया में तुम किसी भी कोने में रहो, कोई भी एक्टिविटी करो, जब तक अप्रशस्त भाव के साथ अपन सहित हैं, मतलब क्या, संसार रूपी कार्य में अपन सहित स्थित हैं, तब तक सभी लोग तृष्णा के शिकार बने हुए हैं। तो आगम के भीतर हमें श्रावकों को भी क्या कहा जाता है कि भाई जितना हो सके तुम उतना लोभ कम करो। देखो हमारे आगम के भीतर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सामग्री है, बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, और बहुत कुछ जीवन के भीतर पुण्योदय से जिसको प्राप्त किया हुआ है, उसको सुखी नहीं कहा है आगम में। याद रखना, one who has the most resources, most money and most everything, that person has not been termed as the wealthy or the wealthiest. तो किसके कहा है आगम में सुखी, किसको कहा हुआ है? तो कहते हैं जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी परिणाम है, जिसके पास संतोष है, वह प्राणी सुखी है, ऐसा आगम कहता है। क्योंकि अगर ये संतोष भाव अगर नहीं है तो आदमी को जीवन के भीतर कितना भी कुछ सामग्री प्राप्त हो,
कितनी ही धन संपदा वैभव प्राप्त हो, उसको वो एक जगह ठिकाने शांत बैठने ही नहीं देती है। ऐसी कषाय है ये तृष्णा कषाय, लोभ कषाय। यानी क्या, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इससे भी बढ़िया चाहिए, इससे भी उत्तम क्वालिटी का चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए। तो अच्छे 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 के चक्कर में आदमी एक दिन करते 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 मर जाता है और अपना सारा जीवन जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो काम कराता है ये लोभ कषाय है। लेकिन जिसके पास लोभ के ऊपर थोड़ा आंशिक रूप से जिसने संयम को प्राप्त कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, और उसके कारण से जिसमें संतोष गुण प्रकट हो गया है, उसके पास चीजें अगर कम भी रही, जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी नहीं रही, ठीक ठीक मात्रा में रही, तो भी वह उसमें जितनी संपदा उसको प्राप्त है, जितनी कुछ चीजें उसको प्राप्त है, उसमें वो सुखी रहता है, सुखी पने का भाव लाता है। ये संतोष गुण का परिणाम है। और उत्तम शौच धर्म के भीतर जो अपन ध्यानत राय जी की जो पूजा पढ़ते हैं उसमें भी यही आता है, संतोषी गुण रत्न भंडारी। क्या कहा उसमें? संतोष गुण रत्नों का भंडार कहा। भाई कितनी बड़ी बात कह दी। और जिनके पास ये संतोष गुण नहीं है लेकिन बहुत कुछ पड़ा हुआ है, फिर भी वो लोग सुखी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, है ना। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान कहा हुआ है ना 12 भावनाओं के भीतर भी। जिसके पास दाम नहीं है, यानी पैसा जिसके पास नहीं है, वो भी दुखी है। और जिसके पास है, उसके पास अगर संतोष गुण नहीं हो तो वो तो महादुखी है, क्योंकि उसको और चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पे ये तृष्णा जो है ये बहुत बड़ी जीव की एक्चुअली शत्रु है। लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है, हमको क्या कहा जाता है, सारे स्कूल में, कॉलेज में, सिस्टम में, माँ बाप समाज, हमको यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि भैया खूब कमा लेना जीवन के भीतर, बहुत ऐश करना, बहुत मजे मारना, बहुत करना, तुम सुखी रहोगे। सिखाया जाता है कि नहीं? अपन अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अपन झूठ मत बोलना, जिनवानी के सामने बैठे हो। कभी ये बोलते हो क्या अपने बच्चों को कि भैया तुम संतोष रखना सीखो जीवन के भीतर, तुमको अपनी पुण्य संपदा से जितनी चीजें प्राप्त हुई हैं उसको सुख मानकर अपने तृष्णा को घटाओ, ऐसा अपन कभी बोलते हैं क्या बच्चों को? ऐसा अपन तो कभी ज्ञान नहीं देते। बच्चे भी नहीं सुनते हैं ना। बच्चे सुनने की बात नहीं, आपने बताया है क्या ऐसा कभी? बात सुनने की बात सही है। देखो हर एक के कषाय की मात्राएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अपना बच्चों को देखो, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे सुखी हो, अच्छे हो, यही लगता है, वो कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन उसी के साथ आगम के अनुसार सुखी होने की जो चाबी बताई है, सुखी होने की जो मार्ग बताया है, वो अपन बताते हैं क्या बच्चों को? अपन नहीं बताते। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उसमें हम खुद बिलीव नहीं करते हैं। उस चीज में जब 10 लक्षण आता है तो बहुत अच्छे से पूजा पढ़ लेते हैं और घर चले जाते हैं अपन खाना खा के। लेकिन उसमें अपना बिलीफ है क्या? इफ वी ट्रूली बिलीव इन इट, वी विल ऑल्सो ट्राई टू पास दिस विजडम ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. We are not telling them not to make money. We are not telling them be poor and you will be happy. That is not the message here. That is not the message. They need to do what they need to do to give a comfort to their life and have a good life. There is nothing wrong with that. Being a Shravak, you have to do those things. But chasing everything just for money, leaving everything up and being like this, that is going to be bad. In that way, person will never be happy. आज दुनिया के भीतर जिनके पास बहुत पैसा है उनको दुनिया सुखी मानती है, लेकिन आप उनसे जाके पूछो कि आप सुखी हो क्या, वो बोलते हैं नहीं सुखी हैं. आपने इसका नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चार्ली मंगर, वाइस प्रेसिडेंट एंड द बिजनेस एसोसिएट ऑफ वॉरेन बफेट? He has lot of good quotes about how to live a good life. He himself was a billionaire, but he lived a very simple life. So did Warren Buffett.
And one of the quotes I remember from Charlie Munger. He said, the bigger the house you have, more miserable you will be in your life. That was his quote. And he lived himself modestly. Although he was a billionaire, he lived in LA area, but he lived modestly. He said, look at your needs and accordingly you build what you want. So there are a lot of good things. I'm just trying to connect this to some of the people who try to live that way. Okay? क्योंकि आगम के भीतर इसको कहा हुआ है कि सुखी होने का जो मार्ग है वो संतोषी गुण है, और वह संतोषी गुण जो है यहां पे आचार्य देव कहते हैं कि लोभ के ऊपर जो हम विजय प्राप्त करते हैं या फिर लोभ का जो निवृत्ति होती है उसी से संतोष गुण की प्राप्ति होती है, और ऐसा होने से अपने को सुख की प्राप्ति होती है। पैसे से सुख नहीं आता है, पैसे से वस्तुएं मिल सकती हैं। You can buy a lot of objects and things with money, but can you really buy happiness with money? I don't think so. Even the Western countries don't believe that you can buy happiness with money, right? So यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो तृष्णा भाव है ये बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन अपन ऐसा समझते नहीं है उसको। देखो, ध्यानत राय जी ने बहुत अच्छी पूजा लिखी है, उसकी एक एक लाइन आप ध्यान से पढ़ोगे, मनन करोगे ना, तो 10 लक्षण का बहुत अच्छा सार उन्होंने उसमें भर दिया है। उन्होंने एक लाइन उसमें लिखी, लोभ पाप को बाप बखाना। देखो 5 पाप हैं, 5 पापों का राजा कौन है? तो बोलते हैं लोभ, यानी परिग्रह रूप परिणाम। तो वहां पे उसमें उन्होंने लिख दी पूजा में, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप समझो। मतलब जो कुछ भी पाप जीवन के भीतर घटित हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? लोभ के कारण हो रहा है, तृष्णा के कारण ही हो रहा है। तो यहां पे भी श्रावकों के लिए देखो, मुनि को तो संज्वलन कषाय रहती है, लोभ कषाय जो रहती है उनको संज्वलन रूप से रहती है, लेकिन जो मिथ्यात्व दशा में है उनको अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ सताते हैं, लोभ सताता है। तो ये लोभ की सब अलग अलग जो हैं, ये सब उसके लेवल्स हैं। तो हम श्रावकों के लिए भी, यद्यपि हम इतने बड़े स्टेज पे नहीं गए हैं, मुनि होकर जो यहां आचार्य अकलंक देव जिस चीज की बात कर रहे हैं उस चीज तक भी अपन नहीं पहुंचे हैं, तो भी टेक अवे क्या है जीवन के भीतर यहां हमारे लिए? व्हाट इज द की टेक अवे फॉर अस? भाई जितना हो सके उतनी कम तृष्णा में जीने का प्रयास करो। बहुत पते की बात है ये, बहुत बड़े कर्म बंधन से बच जाओगे जीवन में। और जितनी तृष्णा में जियोगे, बाहर से सब अच्छा दिखेगा, अंतरंग में तृष्णा से, जितनी तृष्णा से जियोगे उतना जबरदस्त कर्मबंध है जीव को। तो तृष्णालु जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, और यह अंतरंग दशा है। देखो, शुद्धियां 2 प्रकार की बताई है आगम के भीतर। राजवार्तिक अकलंक देव स्वामी इसी महान ग्रंथ के ग्रंथकार और एक ग्रंथ में लिखते हैं कि जो शुद्धियां होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि। तो बहिरंग शुद्धि क्या है भाई? तो बहिरंग शुद्धि के लिए जल है, पानी है, ये चीजें हैं, और एक कोई है धूम है, ऐसे अनेक चीजें हैं जिससे बहिरंग शुद्धि मानी जाती है। मतलब क्या? सी, वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी टेक अ शावर, वी टेक अ बाथ, वी गो टू मंदिर, देन वी कंसिडर आवरसेल्व्स क्लीन, राइट? तो ये बहिरंग शुद्धि हो गई। लेकिन ये शुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरंग शुद्धि महत्वपूर्ण है। अंतरंग शुद्धि मीन्स द इंटरनल क्लीनलीनेस ऑफ आवर मेंटालिटी, आवर माइंड, आवर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस। तो वो कहां से आए? How can we clean up our mind internally? The internal manifestations of mind that we have, how do we clean that up? तो वहां कहते हैं जब तक कषाय का सद्भाव है तो अंतरंग शुचिता जो है वो आने नहीं वाली है। और उत्तम शौच धर्म के भीतर, 10 लक्षण धर्म के भीतर जो मुख्य चीज का ग्रहण किया है वह लोभ कषाय का निग्रह अर्थात अंतरंग शुचिता, अंतरंग शुद्धि की बात करता है उत्तम 10 लक्षण धर्म के अंदर उत्तम शौच धर्म। और वह कब आती है? लोभ के निग्रह करने से।
तृष्णा को जीवन में कम करने से, तृष्णा के ऊपर आंशिक रूप से विजय पाने से। और जब तक जीवन के भीतर जीव तत्व ज्ञान रूप दृष्टिकोण नहीं लाता है, जब तक जीवन के अंदर तत्व ज्ञान का प्रवेश नहीं होता है, तब तक कषायों के ऊपर कोई जीव विजय पा नहीं सकता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है इस मामले में, इसीलिए तत्व ज्ञान को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। नहीं तो तुम कैसे कषायों को कैसे काटोगे बताओ। और यह बात अपने आगम ग्रंथों में ही नहीं है, गीता के भीतर भी एक भाग आता है। उस भाग के भीतर जब पांडु के पुत्र युद्ध के जीतने के पश्चात तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, और तीर्थ यात्रा में वो कहते हैं कि हम गंगा स्नान करेंगे, हमारे सब पाप धुल जाएंगे। तो गीता के अंदर भी कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया हुआ है वो यही दिया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम गंगा स्नान में डुबकी लगा के तुम शरीर को तो साफ कर सकते हो, अपने मन को कैसे साफ करोगे? ऐसा कृष्ण जी स्वयं प्रश्न पूछते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो अंतरंग शुचिता जो है, वह अंतरंग शुचिता लोभ की निवृत्ति के हुए बिना कभी भी नहीं हो सकती। ये बात यहां मुख्य रूप से अपने को समझना है। और ये जो भाव है तप की सिद्धि में, देखो मोक्ष जाना है तो तप करना पड़ेगा, तप के बिना मोक्ष नहीं है ना? आपको पता है ना, अंतरंग और बहिरंग ऐसे तप हैं, उन तपों को अंगीकार किए बिना अपन मोक्ष नहीं जा सकते। तो उस तप को साधने में चरणार्यो ग्रंथ के भीतर कहा हुआ है कि साधक का वैतृष्ण भाव, साधक का जो वैतृष्ण भाव होता है, वह वैतृष्ण भाव जब तप से मिल जाता है तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। मतलब तप की सिद्धि वैतृष्ण भाव के साथ होनी चाहिए। वैतृष्ण भाव मतलब क्या? तृष्णा रहित निर्मल जीव का परिणाम। यानी जितनी जितनी तृष्णा को हम कम करेंगे, उतना उतना हम अंतरंग से सुखी होते जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है आगम, और अपने को दुनिया क्या सिखाती है? दुनिया क्या सिखाती है अपने को? आपके पास जितना आएगा सामान, उतना आप खुश रहोगे। और यहां ये बता रहे हैं कि जितनी जितनी अंतरंग में तृष्णा कम हो गई, उतनी उतनी अंतरंग शुचिता बढ़ गई, उतनी उतनी मात्रा में उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति हो गई, उतनी उतनी मात्रा में तुमको कर्मबंध कम हो गया। और जब यही साधक दशा के भीतर मुनिराज जब ऐसा करते हैं तो वो कर्मों को काटकर मोक्ष को चले जाते हैं। अब ऐसी जो ये लोभ हैं, देखो लोभ अनेक प्रकार का है ना? आप सब जानते हैं ना, अपन ने कितने अभी नाम गिनाए हैं, राइट? देयर इज डिफरेंट मेनी टाइप्स, मतलब बहुत टाइप्स है लोभ के। फिर भी समझने की अपेक्षा से आगम के भीतर 8 प्रकार के लोभ बताए हैं, 8 टाइप्स ऑफ ग्रीड। ये इतने ही हैं क्या? इतने नहीं हैं, लेकिन एक समझने की दृष्टिकोण से अपेक्षा से आचार्यों ने एक कथन को किया हुआ है। तो 5 प्रकार के लोभ कौन से हैं? तो अपने जो पंचेंद्रिय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये जो अपने 5 विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय कषायों से संबंधित होने वाली सभी वस्तुएं और सभी चीजें, ये जो हैं, ये 5 प्रकार का लोभ हुआ। स्पर्श का लोभ, गंध का लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ, चखने का लोभ। 5 इंद्रियों के 5 ही विषय अलग अलग हैं, और उन 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके जीव उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि करता है, उससे उसका लोभ भाव जागृत होता है ना? तो ये 5 के 5 इंद्रियों के विषय है ना, ये 5 प्रकार के लोभ कहे हैं। फिर 6वां लोभ, फिर कहते हैं स्वजीवन लोभ। क्या? अपने प्रति, जीवन के प्रति चलने वाला लोभ। मतलब क्या?
मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, मैं मर नहीं जाऊं, मेरा सब अच्छा चले। ये क्या है? ये लोभ है। कोई मरना चाहता है क्या? डज एनीबडी वांट्स टू डाई? इट्स अ नेचुरल फीलिंग, नोबडी वांट्स टू डाई। ज्ञानी भी नहीं मरना चाहता और अज्ञानी भी नहीं मरना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता भाई। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इस जाति का विचार भी जो है ये भी तो लोभ ही तो है जीवन के संबंध में, तो इसको स्वजीवन लोभ कहा। फिर सातवां कहते हैं परजीवन लोभ। ये क्या है चीज भाई परजीवन लोभ? तो अपने साथ में जो अपने को परिवार मिला हुआ है, मित्र मिले हुए हैं, सगे संबंधी मिले हुए हैं, माता पिता मिले हुए हैं, परिवार है, तो इनमें अपना इतना मोह रहता है कि इस मोह के कारण हम इनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहते। खुद होना चाहते हैं क्या? कौन दूर होना चाहता है बताओ अपने बच्चों से? कोई दूर नहीं होना चाहता। लेकिन ये क्या है? ये भी तो लोभ है। तो यहां आचार्य देव ने कहा पर जीवन लोभ, अर्थात इनको किसी भी प्रकार का इनको मृत्यु नहीं प्राप्त हो, क्षय प्राप्त नहीं हो, इनको ये नहीं हो, यानी इनका जीवन के भीतर सद्भाव होने का लोभ। तो ये गलत है क्या? अब कोई पूछेगा अरे ऐसा हमने अपने बच्चों की तरफ मानना जानना ये गलत है क्या? आगम के हिसाब से गलत ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे लोभ की प्रकार और जातियां समझाई जा रही हैं और उसके अंदर यद्यपि अपना प्रेम है, स्नेह है, सब है, लेकिन है क्या ये बताओ? ये मोह है ना। लोभ का पिता मोह कहा हुआ है। लोभ का पिता कौन है? मोह है। तो मोह से जनित ये लोभ विभ्रम चलता है स्वजीवन के प्रति, पर जीवन के प्रति। और अंतिम कहा कि जीवन, nobody wants to fall sick, nobody wants to have diseases, nobody wants to have any bad things happen to them for their health. तो इसको कहते हैं आरोग्य लोभ। देखो हाँ, ये बहुत सूक्ष्म चीज है सब, और ये सब अपने को रहेगी। बाय द वे आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बट श्रावक दशा में अपन रहते हुए जब तक बड़े मुनि होके शुक्ल ध्यान जब तक अपन लगाते नहीं है तब तक ये सब लोभ रहने वाले हैं। दोनों भी साइड समझो, ये भी साइड समझो और ये भी साइड समझो, क्योंकि अंतिम में जो क्षय, अंतिम कषाय का जो क्षय होने वाला है 10वें गुण स्थान में वो कौन सा है? है ना। तो देखिए, तो यहां पे इस प्रकार से आगम के भीतर राजवार्तिक के अंदर ये 8 प्रकार के लोभ की चर्चा की हुई है और इनसे बचना बहुत बहुत जटिल है। किसी अपेक्षा से तो अपन बच नहीं सकते, लेकिन जिन्हें तत्वज्ञान की दृष्टि प्राप्त है वे आंशिक रूप से इसके ऊपर कंट्रोल, संयम कर सकते हैं। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से, तत्व ज्ञान के प्रभाव से। जिनेंद्र देव ने बताए हुए जो वस्तु तत्व है उसमें समीचीन श्रद्धान उत्पन्न होने के कारण अपन इस चीज को आंशिक रूप से क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका निग्रह अपन कर सकते हैं। मुनियों के जैसा निग्रह श्रावकों को होता है क्या? तो नहीं होता श्रावकों को, क्योंकि मुनियों को अप्रशस्त लोभ रहता नहीं है। मुख्य लोभ जो उनको रहता है वो प्रशस्त चीजों का लोभ रहता है। अपना क्या चल रहा है यहाँ पे? अपना मुख्य लोभ तो अप्रशस्त चीजों के प्रति है। सभी पैसा, धन, चर्चा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, माँ पिता, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, इसमें ही अपन उलझे हुए हैं पूरे जीवन भर। नहीं उलझे हैं क्या बताओ आप? अपनी सबकी यही कहानी है। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान दृष्टिकोण से जब हम इन सभी संयोगी चीजों का विचार करते हैं तो उन विचारों से अपने को आंशिक रूप में क्या तृष्णा के ऊपर अपन विजय पा सकते हैं, यानी कम तृष्णावान हो सकते हैं। संपूर्ण हाँ, एक मिनट, हाँ, संपूर्ण तृष्णा तो अपनी जा नहीं सकती। वो संपूर्ण तृष्णा जाने के लिए अपने को गुणस्थान चढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो वो कसरत अलग है।
तो वो कसरत तो बताई है आगम के भीतर, लेकिन अभी अपन जो जी रहे हैं जीवन, तो हम कैसे जिए जीवन भाई? तो यहां द की टेक अवे इज ट्राई टू बी एज मच लेस ग्रीडी एज पॉसिबल, ऐसा यहां बोलना चल रहा है। हाँ बोलिए जी। So I think having this control is to have a good way of living as a Shravak, right? So having love about good health Yeah. as a Shravak is Yeah. a good thing, right? Hmm. I mean, it doesn't make you unhappy. I mean, all this thing, reflection, everything, and conducting a good way of life is for happiness. Correct. And having good health is, so it's a contradiction in a way, right? Calling that as a lobe, and you should have control on that. I don't know what level of control one should have about good health. Yeah, it's a good question. You see, it pertains to how it pertains to the reference to context, meaning it may appear as a contradiction, but what is being really communicated here is there are some things like this we just cannot escape as a Shravak. Okay, so it is very natural for us to think to have a good life, to have a healthy life, and nothing wrong with having a healthy life, other perspective. Because when you have a healthy life, you can really enjoy life, you can really also do dharma with the body that is given to you. So see, both forms of discourses are available here. Okay, but in the present context, this is why I say reference to context. In the present context, the way it is being presented here is to achieve moksha. So whatever impediments are there in achieving the moksha will all be listed here. Okay, so that is why they are saying that at the end of the day, even if you want to have that desire and you have it and everything else, that also stems from greed. They are not saying leave it at this stage. Okay, because we all wish, we all ourselves wish to be happy, we ourselves wish ourselves to be healthy, and nothing wrong with that. लेकिन ये अपने जीवन के प्रति भी एक लोभ है, ये संपूर्ण निर्लोभी अवस्था नहीं है, इतना ही समझना है और कुछ नहीं है ना? Yeah, thank you. I hope that makes sense to people, other people also who are listening. Because यहां आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल मत रखो या फिर कुछ होता है तो होने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। अदर साइड क्यों कहा हुआ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ये जो माध्यम है धर्म साधने का माध्यम दिया हुआ है आपको। रत्नत्रय भी जब मुनियों को पलता है वो शरीर के सहारे पलता है, इसीलिए तो उनको खाना लगता है, उनको भोजन की स्थिति बनती है, इसीलिए तो वो भी है। देखो, दोनों ही सभी चीजों को ग्रहण करके चलना है। जब हम निचली अवस्था में रहते हैं तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा होते हुए भी मुनिराज जब अन्न का ग्रास ग्रहण करते हैं तो वो क्यों करते हैं? दे जस्ट टेक इट लाइक अ फ्यूअल। बिग डिफरेंस। When we eat food, we eat for taste, we eat for satisfaction, we eat for enjoyment. When munis take the same food, they take it literally as a fuel to the body, nothing else. इसीलिए कितने मुनिराजों के 1, 2, 3, 4, 5 रसों का त्याग रहता है। आप सोचो रसों का त्याग करना कितना डिफिकल्ट है। तो जब तक तुम ऐसे अपने को तृष्णा को अपन घटा नहीं सकते, तब तक इस चीजों के ऐसे टाइप का तप जो है अपन कर नहीं सकते हैं। तो सबके लिए जो है बताया हुआ जो चीज है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, मतलब किसी अपेक्षा से बताया हुआ है और उसी अपेक्षा में अपने को समझना है, नहीं तो अपने को गलत अर्थ अपने को इसमें नहीं निकालना है ना? तो बात समझ में आ गई क्या सबके? Okay, I take that as a yes. One should not spend a lot of time in taking care of one's health. हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, बहुत मोह नहीं करना है शरीर के प्रति। You should treat your body as your servant, right? Right. हाँ, but now servant is the master. The way we are treating it is that servant is the master and we are the slaves. We as in आत्मा, the जीव। तो इसको यहां पे विरोध किया हुआ है ना? इट्स अ फाइनल पॉइंट
पर यहाँ पे जिस इस प्रकृत चीज के भीतर जो कह रहे हैं ये सब लोभ है, देखो ये लोभ की अल्टीमेट टेस्ट है ये। दीज आर द अल्टीमेट कैटेगरीज ऑफ द लोभ। आप मानो या न मानो तो है ही लोभ है। तो जैसे जैसे गुणस्थान के ऊपर मुनि होके ऊपर बढ़ेंगे ये सब कम 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 होते जाएंगे, लेकिन है तो चीज वही। तो जिस भूमिका में अपन बैठे हों इस चीज में अपने को लगना स्वाभाविक है। लाइक राजा भाई सेड, what is wrong with thinking and being happy and having a good healthy life? No, you should. We all should. We absolutely should. And we should take care of our bodies to be healthy. If we can't do that, then we can't even do dharma. That is also true at the same time. लेकिन उसी के साथ में अपने को जीवन के भीतर प्रयत्न क्या रहना चाहिए? Try to be less greedy. अपना जो ग्रीड है वो ग्रीड के ऊपर अपने को कंट्रोल लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अ कॉन्शियस एफर्ट हैज टू बी मेड टू रेन इन द ग्रीड दैट इज परवेडिंग पीपल्स लाइफ। तो देखो अभी इसी विषय को यहां पे आचार्य देव क्या कहते हैं, देखो। हाँ, अभी आई टोल्ड यू राइट, श्लोक नंबर 21 and 22 बोथ गो टुगेदर। ओके, so let us take 22 and then we will, do we have time here? Yeah, we have another 10-15 minutes, right? 10 minutes. Nice. अब 7 मिनट है. Sorry? हाँ. 9:53, right? हाँ. 9:53. Okay. Okay. So I think what we should do here is we should stop here, I believe. And when we meet next time, we will do the other shloka, because श्लोक 22 is actually the extension of this, है ना। तो चलिए अपन अगले समय में अपन श्लोक 22 करते हैं। अभी यही इतना ही रखते हैं अपन, और इसके संबंध में फिर और प्रश्नोत्तरी अगर अपने को करना है तो अपन कर लें, या फिर पिछले समय में जो अपने श्लोक हुए थे उस श्लोक के संबंध में अपने को अगर कोई प्रश्नोत्तर हैं तो अपन वो अभी कर सकते हैं, है ना। जय जैन धर्मराज भाई, मैं रुक्मणी बोल